afternoon. Hello everyone. So let's start with geography, chapter number 2. It's class 11 NCRT, the origin and evolution of the earth chapter. So let's start from here. So let's start reading from here about alien theories, and there are some modern theories. Alien theories, a large number of hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of the earth, कि अर्थ की ओरिजिन कैसी हुई इसके बारे में बहुत से हाइपोथेसिस बाहर रखे गए थे फिलोसफर्स के साथ साइंटिस्ट के द्वारा. वन ऑफ द अर्ली पॉपुलर एग्रीमेंट वॉज बाई जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कैंट के द्वारा जो एग्रीमेंट दिया गया था वो पॉपुलर था. मैथमेटिशियन लाप्लास रिवाइज्ड इन 1996. It is known as Nebula hypothesis. The hypothesis considers that the planet were formed out of the cloud of a material associated with the youthful sun, which was slowly rotating. तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि जो इमैनुअल कांट ने दिया था एलियन थ्योरीज का, जो इमैनुअल कांट ने एक आर्गूमेंट्स दिया था रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, उसके बाद क्या जो मैथमेटिशियन लाप्लास थे उन्होंने इसे रिवाइज कर दिया और उसको क्या कहा गया, नेबुलर हाइपोथेसिस कहा गया. अब नेबुलर हाइपोथेसिस होता है कि यहाँ पे इसकी थ्योरी में ये कहा गया कि दैट इज प्लैनेट्स वर फॉर्म आउट ऑफ द क्लाउड ऑफ मटेरियल associated with the youthful sun which was slowly rotating. ये प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए हैं, आउट ऑफ द क्लाउड मटेरियल, जैसे कि ये यूथफुल सन है इसके चारों तरफ जो क्लाउड था उसी में से क्या हुआ, प्लैनेट्स फॉर्म हुए. तो नेक्स्ट इसका वीडियो भी देख लेते हैं हम लोग. तो दिस इज़ द वीडियो कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए. Formation of the planets. The universe comprises countless galaxies, each one containing numerous stars. Around some of those stars, there are planets, just like those that orbit our own star, the Sun. The nebular hypothesis is the most widely accepted explanation for how the Sun and planets in the solar system may have formed. When our solar system was first created, all that was thought to have existed was a cold, spinning cloud of gas called the solar nebula. The nebula resulted from an uneven distribution of gases throughout the universe. As the gravitational pull began to condense the gas toward the center, the speed of the rotation increased. This caused the cloud to flatten, creating an accretion disk. Matter continued to collect as the growing force of gravity drew it toward the center. Eventually, the gas warmed from the increasing pressure. As the mass further increased, the gravity also increased, and as a result, the temperature continued to rise. A ball of hot gas formed in the center of the accretion disk. This is the sun. ये sun है. हम देख सकते हैं ये उसके चारों तरफ वो डिस्क है जिसमें से प्लैनेट्स फॉर्म होंगे. आगे देखते हैं. Creating a protostar, also known as the sun. Finally, when enough gas gathered in the center of the protostar, the pressure generated enough heat to fuse the atoms, forming a star. Outside the star, matter was forming into clumps of gas, dust, and rock, which created protoplanets. These protoplanets continued to grow as they trapped material in their gravitational fields. Because the protoplanets all formed from the same cloud of gas and dust, they travel around the sun in the same direction and in the same plane. The nebular hypothesis also explains how the planets are arranged. The heat and solar winds caused by the sun swept the lighter gases farther out into the developing solar system. This is why the rocky terrestrial planets, Mercury, Venus, Earth, and Mars, are located closer to the sun. तो दिस इज़ द वीडियो. इसके थ्रू हमें पता चलता है कि नेबुलर हाइपोथेसिस कैसे हुआ था. उसकी थ्योरी में क्या होना चाह रहा है कि जो भी प्लैनेट्स थे वो सब कैसे फॉर्म हुआ आउट ऑफ द क्लाउड क्लाउड ऑफ मटेरियल जो एसोसिएटेड था यूथफुल सन से. जो यूथफुल सन था उसके ज़्यादातर जो क्लाउड ऑफ मटेरियल था उसके थ्रू उसमें से क्या बने जुड़ के उन्होंने क्या फॉर्म की, प्लैनेट्स फॉर्म किए. ठीक है. उसके बाद क्या होता है 1900 में
कैम्ब्रेनियन एंड ये आते कंसिडर द वॉन्डरिंग स्टार अप्रोच द सन। ये कहते हैं कि एक वॉन्डरिंग स्टार था जो इसने अप्रोच किया सन को। एज अ रिगार्ड से एक्सटेंशन मटेरियल सेपरेट हुआ उसमें से एंड फॉर्म किया सोलर स्पेस को। वो क्या कहते हैं कि जब सन था तो उसमें से एक अलग सा कोई स्टार आया और जो सन से नर के चला गया। फिर क्या हुआ इसकी जो जब ये यहाँ से सन से नरा तो यहाँ पे क्या हुआ वो सिगार शेप का मटेरियल सन से बाहर निकला जो सन के जो जिसने क्या किया सन का सोलर स्पेस फॉर्म किया। जैसे कि सन है, फिर हमारे बाकी जो चीज़ें हैं ये पूरे स्पेस को सन के फॉर्म किसने किया, ये जो मटेरियल जो सन में से निकला। ठीक है, फिर उसे कहते हैं एज दिस पासिंग स्टार मूव्ड अवे द मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर स्पेस कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसे जैसे पासिंग स्टार तो चला गया, सन में से मटेरियल बाहर निकल गया। फिर क्या हुआ कि वो सन तो बीच में ही था, फिर मटेरियल सन के चारों तरफ घूमने लगा एंड स्लोली कंडेंस इनटू प्लैनेट। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे घूम के फिर वो प्लैनेट्स बना लिया और ऐसे ही सन के चारों तरफ मतलब कि ऐसे प्लैनेट्स है ना, तो ये कुछ नहीं ऐसे ऐसे प्लैनेट्स बन गए। तो इनका कहने का मतलब ये तो ये दूसरी थ्योरी जो आई थी। अब उसके बाद क्या हुआ, प्लैनेट्स बन गए। सर जेम्स चेंस एंड सर हैरोल्ड जेनिफरी ने सपोर्टेड दिस आर्गूमेंट। तो उन्होंने ये सेकंड वाले को सपोर्ट किया। एज द नेटर डिड द एग्रीमेंट कंसिडर टू बी कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन को एग्जिस्टेड। एज द नेटर डिड द एग्रीमेंट कंसिडर टू बी ऑफ अ कंपेनियन टू हैव टू द सन टू हैव बीन को एग्जिस्टेड। In 1950 these two philosophers, German philosophers, इस इन्होंने क्या किया रिवाइज किया नोबल हाइपोथेसिस को जो डिफरिंग इन डिटेल्स थोड़ा डिफरेंट डिटेल्स में उन्होंने थोड़ा अंतर था, जो पहले से उससे थोड़ा अंतर था इनका। ये कंसिडर सन वो सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला। उनका ही मानना ये था कि सन है, ये सन है वो सराउंडेड किससे, सोलर नेबुला से सराउंडेड है मोस्टली, जिसके अंदर कौन कौन से गैसेज है, हाइड्रोजन की गैसेज और हीलियम की गैसेज है अलॉन्ग विद टर्म और कुछ डस्ट भी है उसमें। और वो क्या कहते हैं फ्रिक्शन हुआ, कॉर्नेशन हुआ पार्टिकल्स का, इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम ये सब पार्टिकल्स जो भी इसमें डस्ट सबके अंदर क्या हुआ कॉर्नेशन भी हुआ, फ्रिक्शन हुआ और क्या हुआ जिसके तो फॉर्मेशन हो गया। एक इसके कारण क्या हुआ एक डिस्क जैसे कि सन इसके चारों तरफ एक डिस्क शेप्ड क्लाउड फॉर्म हो गया एंड प्लैनेट्स वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस एक्सीलरेशन। अब इसमें से क्या हुआ प्लैनेट्स फॉर्म होने लगे, क्या होने प्लैनेट्स होने लगे फॉर्म, क्योंकि किससे फॉर्म होने लगे थे एक्सीलरेशन के प्रोसेस से, मतलब तब कि वो एक साथ जुड़ के प्लैनेट्स क्या होने लगे बड़े बड़े प्लैनेट्स फॉर्म होने लगे उससे। हमें पता चलेंगे अब इसका इसमें क्या हुआ मॉडर्न थ्योरीज कुछ आती है। मॉडर्न थ्योरीज में क्या होता है प्रॉब्लम्स ऑफ ओरिजिन यूनिवर्स एंड जस्ट द अर्थ, और यहाँ पे निकला साइंटिस्ट ने टुक द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखने के रेदर देन प्लैनेट्स और प्लैनेट्स से। ठीक है नॉर्मल ठीक है हो गया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में यहाँ बात की जा रही है। अब बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसका मतलब मानना क्या होता है कि यूनिवर्स हमारा क्या हो रहा है फैल रहा है। जब यहाँ से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था तो अब यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे लिखा है कि इस एविडेंस ह्यूमन इन 1920 प्रोवाइडेड एविडेंस यूनिवर्स, उन्होंने एविडेंस यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है एज टाइम पास गैलेक्सी मूव सब फर्दर आगे बढ़ती जा रही है। यू कैन एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। बैलून का एक एक्सपेरिमेंट लिखा है कि हाँ जब आप बैलून जब छोटा सा बैलून होता है जब आप उसे क्या होता है जब बैलून आप नहीं होते उस पर कोई डॉट डॉट कर देते हो, फिर जब आप उसको फुला देते हो तो बैलून क्या होता है ये डॉट्स कितने दूर हो जाते हैं, यहाँ पे पास दिखेंगे यहाँ पे दूर दिखेंगे। तो ये पता चला कि हमारा यूनिवर्स बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है डे बाई डे एक्सपेंड कर रहा है। नाउ इफ़ यू अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे बैलून बढ़ रहा है वैसे गैलेक्सीज का भी इंक्रीज किया जा रहा है। यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपेंडिंग, हाउएवर यू विल फाइंड द बिसाइड द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑन द बैलून द पॉइंट्स आर एक्सपेंडिंग। तो ठीक है दिस इज नॉट देखो साइंटिस्ट बिलीव दैट थ्रू द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इंक्रीजिंग ऑब्जर्वेशन डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज। एक साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि स्पेस ठीक है गैलेक्सीज के बीच में स्पेस बढ़ रहा है पर हमारी जो ऑब्जर्वेशन है जो भी साइंटिस्ट देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है कि गैलेक्सी वो नहीं कहती गैलेक्सीज एक्सपेंड कर रही हैं। स्पेस ठीक है बढ़ रहा है वो ये मानते हैं पर गैलेक्सीज नहीं बढ़ रही हैं। सो द बैनर एग्जाम्पल जो नहीं पार्श नहीं करेक्ट भाई। जैसे हम देखते हैं कि जो भी चीज़ें जब हम जो भी चीज़ें साइंस में होती है वो आर्गूमेंट्स वो कुछ चीज़ें पार्श नहीं करेक्ट होती हैं, सबका ट्रूली बिकॉज सब अजम्पशंस पे बेस्ड है राइट। अब देखो जैसे कि ये बिग बैंग थ्योरी कैसे यूनिवर्स गैलेक्सीज कैन वो एक्सप्लेन नहीं करी, फिर कैसे उनके बीच का जो स्पेस है वो डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। देखो कितना गैप है। नेक्स्ट देखते हैं तो बिग बैंग थ्योरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेजेस। कुछ स्टेजेस यहाँ पर देखो इसमें सिंपल से छोटी सी बात यही है जो इंपॉर्टेंट वही देखते थे। बिगिनिंग में क्या हुआ ऑन द मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एक्सिस्ट ऑन द वन प्लेस टाइनी बॉन्ड, मतलब कि टाइनी बॉन्ड को क्या सिंगुलरिटी कहा जाती है विद इन अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम
इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनका कहने का मतलब है जब यूनिवर्स की स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि यूनिवर्स जब अपने बिगिनिंग फेज में था, स्टार्टिंग फेज में था, इन वन फेज इन द फॉर्म ऑफ, तो सारे मैटर सब कुछ एक स्टार्टिंग एक छोटे से टाइनी बॉन्ड में, जिसको हम क्या कहते हैं सिंगुलर एटम कहते हैं, सिंगुलैरिटी भी इसे कहते हैं। यहाँ पे एक टाइनी से बॉन्ड में सब कुछ था, सारा मैटर था जो यूनिवर्स को जिसने फॉर्म किया, सब कुछ इसी में था। और यहाँ पे क्या हो रखा था, इनफाइनाइट टेम्परेचर भी था और इनफाइनाइट डेंसिटी भी थी इसकी, और बहुत छोटे से बॉल में सब कुछ था। फिर उसके बाद क्या होता है, जब बिग बैंग क्या होता है, एक्सप्लोड होता है, जब एक्सप्लोनेशन होता है, जब एक्सप्लोड होता है, बिग बैंग थ्योरी जब टेक प्लेस करती है, तो उसके कारण क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ये जो ह्यूज एक्सपेंशन होने लगता है, यूनिवर्स क्या होता है, फैलने लगता है और बढ़ने लगता है इस बिग बैंग का जो जब ये एक्सप्लोड करती है पॉइंट नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो होना जा रहा है कि जो बिग बैंग थ्योरी है ना, वो 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ये काम हुआ था, पहले ये एक्सप्लोइड हुआ था और पहले ये चीज़ें हुई थी। अब होना जा रहा है कि उस समय जब ये चीज़ें हुई और उस समय चीज़ें हुई, पर जब द एक्सपेंशन कंटिन्यूस इवन टू द प्रेजेंट डे, कह रहे हैं कि प्लैनेट के बीच गैलेक्सी वो डिस्टेंस बढ़ता जाता है, एक्सपेंशन अभी हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है नेट। उसके बाद क्या कहा जाता है, एज इट ग्रो सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर, जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कुछ एनर्जी क्या कन्वर्ट हो गई, मैटर में कन्वर्ट हो गई। फिर क्या हुआ, द पर्टिकुलर रैपिड एक्सपेंशन विद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आफ्टर द बिग बैंग, बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन होने लगा था बिग बैंग के द्वारा। और फिर क्या होता है, विद इन पहले 3 मिनट्स में बिग बैंग के इवेंट के बाद यहाँ बिग बैंग हुआ, फर्स्ट 3 मिनट्स में क्या हुआ, पहला ऑटम हमारा फॉर्म हो गया था, फर्स्ट ऑटम बिगिन टू फॉर्म, राइट। विद इन 3 lakh years from the big bang, temperature dropped to 4500 Kelvin and gave rise to atomic matter. The universe become transparent. अब इसका मतलब क्या है कि 3 lakh years के अंदर ही क्या हुआ कि बिग बैंग जो टेम्परेचर था वो ड्रॉप हो गया, कितना 4500 केल्विन, और क्या वो राइज को एटॉमिक मैटर को राइज देने लगा। और यहाँ पे हमारा यूनिवर्स क्या हो जाता है, ट्रांसफर मतलब कि हमारा यूनिवर्स प्रेजेंट एक फॉर्म नहीं लेता है। अब हमारा यूनिवर्स दिखने लगता है कि यस यूनिवर्स आ गया है, गैसेस मटेरियल केम ओवर है, तो सिर्फ गैस मटेरियल जैसे यूनिवर्स फॉर्म सब कुछ एक छोटे से ऑटम में था ना, तो वो फैल रहा है, वो बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ते तो क्या होता है कि द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन। अब एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब समझिए क्या होता है, ये होता है कि जो इंक्रीज है, क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द स्पेस ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज नहीं बढ़ रही, गैलेक्सी के बीच में जो ये छोटू सा जो ये स्पेस है वो हर नेक्स्ट समय पे बढ़ता ही जा रहा है। देखते हैं फिर क्या होता है, एक और थ्योरी उस वक्त आते हैं होने की, कॉन्जर्व स्टेडी स्टेट। इसमें इनका कहने का मतलब ये होता है डेट कि इसका कहने का मतलब है कि हमारा यूनिवर्स क्या है वो नहीं फैल रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है। बस साइंटिस्ट इस बात को रिफ्यूट कर देते, नहीं मानते उनकी थ्योरी को, बिकॉज इसका एविडेंस बहुत कम था। सबसे ज़्यादा एविडेंस था कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो इनकी बात को नहीं माना जाता है स्टेडी स्टेट के। स्टार कैसे फॉर्म हुए, तो ये स्टार कैसे फॉर्म हुए, स्टार ऐसे फॉर्म हुए कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ the star formation. The distribution of matter and energy was not even in early universe. Distribution of matter और एनर्जी इक्वल नहीं था जब सोर्स में यूनिवर्स था। जब स्टार्टिंग ऑफ यूनिवर्स में जो मैटर था वो एनर्जी सबके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा था। दिस इनिशियल डेंसिटी गिवन राइज टू डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेज। और ये जो डेंसिटी में डिफरेंसेस था तो क्या वो डिफरेंसेस होने का ग्रेविटेशनल फोर्सेज से, मतलब कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रही, कहीं कम लग रही है, और इसी आ गया मैटर्स इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉ टुगेदर। और जो डिफरेंसेस हुआ ग्रेविटी में उसके कारण क्या होने लगा कि मैटर, इसके कारण फोर्स होने कि मैटर एक साथ जुड़ने लगे। दिस फॉर्म द बेस ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज है। और ये क्या करनी इन्होंने फॉर्म किया बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज क्या होती हैं, अब क्या हो कि जब ये एक साथ जुड़ने लगे बिकॉज ऑफ द डिफरेंस उसमें डेंसिटी मतलब डिफरेंस उनकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस में था और वो एक साथ जुड़ने लगे, तो इन्होंने एक बेस तैयार किया जब जहाँ से हमारा क्या गैलेक्सी फॉर्म हो सके। यहाँ लिखा कि गैलेक्सी कंटेन लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सी में के बहुत सारे स्टार्स हैं। अ गैलेक्सी स्प्रेड ओवर अ वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर। और हाँ वो मतलब कि गैलेक्सी आर स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड ऑफ नाइट है, एक नाइट ईयर। एक अगर हम देखें कि नाइट ट्रेवल्स यहाँ पे नीचे लिखा नाइट ट्रेवल्स द स्पीड ऑफ 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर लिखा है गैलेक्सी कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर अ वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड ऑफ नाइट ईयर्स। ठीक है, तो एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सीज के बीच में बहुत
बहुत नाइट ईयर्स का, मे बी 80,000 प्लस नाइट ईयर्स का डिस्टेंस होता है दो गैलेक्सीज के बीच में। यहाँ पे लिखा है कि और गैलेक्सी बीच में बहुत 1000 नाइट ईयर्स का डिफरेंस है। द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सी, सी देखो कितना 80,000 टू 1,50,000 नाइट ईयर्स तक डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सी का है। अ गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म, अब गैलेक्सी हमारी कैसे फॉर्म होती है? ऐसे फॉर्म होती है कि अ गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय द एक्युमुलेशन ऑफ अ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड। अब गैलेक्सी फॉर्म होने के स्टार्टिंग ऐसे होते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो एक वेरी लार्ज क्लाउड फॉर्म करेगा, नेबुला। हाइड्रोजन गैस आपस में जुड़ के एक बहुत बड़ा क्लाउड फॉर्म करेंगे जिसका नाम है नेबुला। क्या नाम है? नेबुला। अब लिखा है कि ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स करेंगे न्यूक्लियस नंबर, और ये जो नेबुला जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो न्यूक्लियस नंबर ऑफ गैस, ये ऐसी चीज़ों को क्रिएट करते जाए, मतलब कि कोऑर्डिनेशन अंदर होता जाएगा तो लोग जो वो सब सारे मटेरियल जुड़ के ऐसी चीज़ें इसके अंदर क्रिएट होने लगेंगी। और यानी कि इवन डेंसन गैसेस बॉडीज, और बहुत डेंस भारी गैसेस बॉडी में बनाएंगे। ये भी राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार, जिसके कारण क्या होगा, हमारे स्टार की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? ये नेबुला जो है ना बड़ा सा, इसके अंदर हमारे स्टार की फॉर्मेशन हो रही है। नाउ द स्टार फॉर्मेशन ऑफ स्टार बिलीव टू हैव टेक प्लेस, और ये कहा जाता है कि 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्मेशन ऑफ स्टार हुआ। तो हम देख सकते हैं स्टार्स कैसे फॉर्म हुआ। ये नेबुला था, बड़ा सा नेबुला जिसमें किसी कौन सा गैस भरा हुआ है? हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, वो आपस में जुड़ने लगा, एक्युमुलेट होने लगा, और इस नेबुला के अंदर ही स्टार का फॉर्मेशन होने लगा। ठीक है, स्टार का फॉर्मेशन बिकॉज क्या हो कि जो जैसे से नेबुला बढ़ा था न्यूक्लियस नंबर ऑफ गैसेस, मतलब कि गैसेस आपस में जुड़ के फॉर्म होने लगे, ये कंटिन्यू ग्रो होने लगे, डेंसर गैसेस बॉडी बनने लगे। ठीक है, अब हमें पता चलेगा कि स्टार कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ऐसे ऐसे जुड़ के स्टार फॉर्म हो। नेबुला के अंदर प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए? प्लैनेट्स के भी कुछ स्टेजेस हैं। पहला स्टेज ये देखा जाता है कि तो स्टार्स जो नेबुला के अंदर थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हुआ, कोई क्या करते ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि नेबुला के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टार्स बन गए थे न्यूक्लियस नंबर ऑफ गैसेस के थ्रू के रूप में बन गए थे, छूने के रूप में बन गए थे। तो क्या हुआ कि ये जो नेबुला है इसके अंदर ये जो स्टार्स बन गए हैं, देखो ये, ठीक है, अब ये क्या हुआ, आपस में जुड़ के क्या होने लगे, एक कोर तैयार करनी है इन्होंने। नेबुला के अंदर एक कोर तैयार करनी है उन्होंने जुड़ के, ह्यूज रोटेटिंग डिस्क के चारों तरफ एक ह्यूज रोटेटिंग डिस्क बन गया, डेवलप्स अराउंड द गैस कोर, एक कोर बन गया। देखो यहाँ पे एक कोर बन गया, इसके चारों तरफ एक ह्यूज रोटेटिंग, मतलब कि वो सारे स्टार्स क्या हुआ आपस में जुड़ गए, और जुड़ के एक कोर तैयार करनी है, और उसके चारों तरफ एक रोटेटिंग डिस्क बन गई। नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेज में ये हो जाएगा जो गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस। अब जो गैस का जो क्लाउड था उसके चारों तरफ कंडेंस होने लगेगा, और मैटर जो एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप इनटू स्मॉल, और जो मैटर था उस कोर के आसपास जो भी, देखो ये कोर है, इस कोर के पास एक क्लाउड था, ये कंडेंस होने लगा, और जो मैटर था वो भी स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट में अपने आप को बनाने लगेगा। दिस स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेंशन के थ्रू वो अपने वो प्लैनेटेरिज्म्स को डेवलप कर देंगे। लार्जर बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोऑर्डिनेशन एंड ग्रेविटेशनल सेक्शन कॉजेज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर। लार्जर बॉडीज, ये सारी बॉडीज क्या होगी, कोऑर्डिनेशन और ग्रेविटेशनल सेक्शन के, तो क्या होगा, ये कोर के तरफ ये सारे प्लैनेट्स क्या हैं, ये सारे छोटे ये आपस में जुड़ के प्लैनेटेरिज्म को फॉर्म करने लगेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी इसमें लगेगा, कोऑर्डिनेशंस भी लगेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्लैनेटेरिज्म, आज देखो यहाँ पे ये भी बोलना चाहिए कि प्लैनेटेरिज्म होती क्या है, वो क्या है, एक लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज है, एक बहुत सारे स्मॉलर बॉडीज को प्लैनेटेरिज्म्स कहा जाता है। लिखा है इन द फाइनल स्टेज हार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर प्लैनेटेरिज्म accrete to form a fewer larger bodies in the form of planets। अब फाइनल स्टेज में क्या होगा, ये कोर है, इसके चारों तरफ ये नेबुला के अंदर ये सारी चीज़ें फॉर्म हो रही थी। अब क्या होगा, ये कंडेंस होने लगा, और फिर क्या होने लगा कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल जो प्लैनेटेरिज्म है वो क्या हो रहेंगे, वो अब फॉर्म होने लगेंगे ढेर सारी। ये दोनों समझो, ये दोनों हैं, ये दोनों आपस में जुड़ के इतना बड़ा फॉर्म करनी है, और यही क्या बन रहे हैं, हमारे प्लैनेट्स बन गए। समझ में आ गया? इफ़ यू आर नॉट एबल टू ग्रैस्प इट राइट नाउ, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप दोबारा देखोगे और अच्छे समझ में आएगा। तब भी थोड़ा सा हो सकता है पहली बार 10% समझ में आए, फिर 30 आएगा, फिर 70 आएगा। आप वीडियो दोबारा देखो, सच में समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आवर सोलर सिस्टम, अब हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जनरल बातें हैं, यू कैन, अगर आप इसे रीड करो तब भी समझ लोगे, बच्चे नियम पढ़ लेते हैं। आवर सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स होते हैं, सबको पता है। द नेबुला फ्रॉम विच आवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड started the coordination and core formation sometimes, मतलब
जिससे सपोज जैसे कि नेबुला से सपोज किया गया है, स्टार्टिंग में क्या बना, हाइड्रोजन गैसेस से नेबुला बना, वहीं से गैलेक्सी, वहीं से स्टार फॉर्मेशन और फिर वहीं से प्लैनेट्स फॉर्मेशन जो हमने भी पढ़ा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिससे हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ, इसका जो कोलैप्स होना स्टार्ट हुआ, कोर फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, उससे 5.6 बिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट होता है। प्लैनेट्स भी फॉर्म हुए थे 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, देखिए उसके बाद ही फॉर्म हुए हैं। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 planets and 63 moons and millions of smaller bodies such as asteroids, comets, huge quantity of dust, grains, gases, हाँ सब हैं। आउट ऑफ 8 planets में कुछ planets को इनर कहा जाता है, जैसे कि मरकरी, वीनस, मार्स एंड अर्थ, और कुछ planets को इनर planets कहा जाता है, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और कुछ को क्या एज ए लाई बिटवीन सन एंड बैंड ऑफ, क्योंकि किसके पीछे पाए जा रहे हैं, ये है सन और द बैंड ऑफ एस्ट्रॉइड्स। हमें पता है ना, मरकरी, वीनस, मार्स एंड अर्थ एंड मार्स यहीं पाए जाते हैं ना, और फिर उसके ज़्यादा क्या एस्ट्रॉइड का बैंड है। फिर इसके बाद देखो ये इनर प्लैनेट्स हैं, ये इनर प्लैनेट्स हैं, उसके बाद जो ये आउटर प्लैनेट्स हैं, और यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे इन 4 जो प्लैनेट इसको देखते हैं, ये जो 4 प्लैनेट्स है इसको क्या है, इसको टेरिटोरियल प्लैनेट्स भी कहा जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इसको रेडियो प्लैनेट्स कहा जाता है, मीनिंग अर्थ लाइक एज दे आर मेड ऑफ रॉकी मटेरियल्स एंड हैव रेटेड हाई डेंसिटी, उनके पास है और रॉकी मटेरियल से बने, तो हम देख सकते हैं रॉकी मटेरियल से बने हैं। पर जो रेस्ट 4 है, जो मैंने यहाँ पे एस्ट्रॉइड की बैंड रॉकी, यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ पे हमारे 4 प्लैनेट्स हैं, और फिर इन्हें इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, जैसे टेरिटोरियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जिसको जोवेन, इसको आउटर प्लैनेट कहा जाएगा, और इसको जोवेनल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। यहाँ पे जो प्लैनेट्स बने हैं वो अप्रॉक्सीमेटली बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू इनर प्लैनेट, एंड इवन तो ये गैसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ये गैसेस उतने नहीं है छोटे वाले, पर गैसेस कौन है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्टफुल आर्कन जोवेन और गैसेस, मतलब गैसेस आई थिंक होते हैं, गैसेस जाइंट प्लैनेट्स। जोवेन मतलब जुपिटर नाइक, जोवेन मतलब क्या है, जुपिटर नाइक होता है। मोस्ट ऑफ देम सच इज लार्जर देन द टेरिटोरियल प्लैनेट्स हैव थिक एटमॉस्फेयर, और मोस्ट ऑफ देम में क्या है, जो लार्जर हैं, मैंने कभी कहा था टेरिटोरियल प्लैनेट्स है वो ज़्यादा, यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं जोवेनियन प्लैनेट्स जो हैं, गैसियस प्लैनेट्स जो हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली बड़े जुपिटर बड़े, सैटर्न बड़ा है, नेपच्यून बड़े हैं ना, एज कम्पेयर टू दिस बड़े, तो टेरिटोरियल प्लैनेट्स तो बड़े ही हैं। देखो एंड उनके बाद थिक एटमॉस्फेयर होता है, मोस्टली ऑफ हीलियम गैस, और हमें बताइए ये गैसेस क्यों कहा, बिकॉज उनके पास थिक एटमॉस्फेयर होता है, उनके पास थिक एटमॉस्फेयर होता है। किस गैस से बना, हीलियम से बना हुआ, और किससे, हाइड्रोजन से बना हुआ। ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड, समटाइम्स अराउंड 4.6, मतलब सारे प्लैनेट्स को क्या माना जाता है कि एक ही समय में फॉर्म हुए हैं। एट नाउ प्लूटो भी पहले माना जाता था, अब प्लूटो को क्या कहा, प्लैनेट से कंसिडर नहीं कहा जाता है। टिल रिसेंटली प्लूटो वॉज कंसिडर प्लैनेट, हाउएवर इन द meeting of International Astronomical Union, a decision was taken Pluto, like other terrestrial objects discovered in the recent past, may be called dwarf planet because क्यों, बिकॉज इनके पास जो प्लूटो है उसके बाद एक प्लैनेट बन के इतनी क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज इसके पास कोई मून नहीं है कोई, और ये बाकी प्लैनेट्स की तरह सही से राउंड में नहीं घूमता, और ऐसे कुछ और भी बात है जिसके थ्रू हमें क्या करना चाहिए, प्लूटो को डार्क प्लैनेट से हटा देगा। अब देखते हैं टेरिटोरियल डिफरेंस क्या है, टेरिटोरियल प्लैनेट और जोवेनियल प्लैनेट। टेरिटोरियल प्लैनेट जो हमने अभी देखा था, जो टेरिटोरियल प्लैनेट जो सन के पास पाए जाते हैं वो हमारे सन के पास होते हैं, और वो क्या होते हैं, तो वो हमारे सन के पास पाए जाते हैं, पर जोवेनियल प्लैनेट्स क्या हमें सन से दूर पाए जाते हैं। सोना देखो यहाँ पे क्या करें, टेरिटोरियल प्लैनेट्स कहा क्यों जाते हैं, ये भी देख सकते हैं, बिकॉज जो सोलर विंड्स जो सन से देख रहे हो, जो सोलर विंड्स आती हैं उन्होंने क्या किया, वो सबसे ज़्यादा जो भी सन, जैसे ये सन है इसके पास सबसे जो प्लैनेट होगा उसके ऊपर सन की विंड्स ज़्यादा लगेंगी, ठीक है, तो उसके कारण क्या उनका जो गैस था, जो डस्ट है, वो सब नो आउट हो गया, इसलिए क्या उन्हें टेरिटोरियल प्लैनेट्स कहा जाता है। और जो सोलर विंड्स हैं वो नॉट ऑल इंडेक्स, और उसके बाद जो सोलर विंड्स है, जो जोवेनियल प्लैनेट्स हैं उनके पास उतना नहीं पहुँचेंगे एज़ कम्पेयर टू मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ के पास जितना पहुँचेंगे, तभी उन्हें जोवेनियल प्लैनेट्स कहा जाता है, बिकॉज उनका गैस उनके पास ही इतना गैस नहीं हटा है जितना गैस टेरिटोरियल प्लैनेट का हट चुका है। तो
इस कारण से ट्यूबरल प्लैनेट्स गैसीय प्लैनेट्स कहा जाता है। जो ट्यूबरल प्लैनेट्स हैं स्मॉलर भी होती हैं और नो ग्रेविटी की होती हैं, तो वो हो नहीं कर पाए स्केपिंग गैसेस का। पर हमारे जो टेटोरियन प्लैनेट्स, मैंने पता कि टेटोरियन प्लैनेट्स क्या है, वो क्या है, स्मॉलर होती हैं, पता है, छोटे छोटे होते हैं और नो ग्रेविटी होती है, इसमें तो गैसेस को नहीं रोके। पर एज़ कम्पेयर टू जोवियन प्लैनेट्स के वो बड़े होते हैं, वो अपनी उनकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होती है और वो उनके पास ग्रेविटी ज़्यादा होती है, वो बिग भी होते हैं, जिसके कारण क्या है और मैं गैसेस को होल्ड कर पाए उतना इंटेंस। वैसे भी सोलर विंड्स उतने नहीं आ रहे थे उसके ऊपर, तो होल्ड तो कर ही नहीं है इन्होंने। उसके बाद देख सकते हो माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट सर्व अस नूडल्स इफ़ यू वांट टू रिमेंबर। अगर इसको डेट्स को मतलब कि इसकी 9 को याद करने में दिक्कत होती है, तो बाय दिस ट्रिक यू कैन लर्न दिस 9 एज वेल। ठीक है, हार्ड कोर यहाँ पे लिखा है ना, हार्ड कोर होता है इनर प्लैनेट्स का, जो प्लैनेट गैसेस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट आई एम टीचिंग राइट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट आई एम नॉट टीचिंग राइट इट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। बट यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि देखो, जैसे कि वीनस है, अर्थ है, मार्स, इनकी डेंसिटी देखो तो डिस्टेंस देख रहे हो सबसे ज़्यादा नेपट्यून का है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्स का है। ठीक है, डेंसिटी में दिखा रहे सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, देखो सब में किसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारे अर्थ की है, 1 नंबर लिखा है तभी यहाँ पर। सेकेंड है हमारे वीनस की डेंसिटी ज़्यादा है, थर्ड हमारे मार्स की डेंसिटी ज़्यादा है, और अगर देखा जाए सबसे कम डेंसिटी है तो हमारे सैटर्न की कम है। रेडियस देखा जाए तो बस दिस थिंग आर इम्पॉर्टेंट टू नो, जस्ट नो। रेडियस देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेडियस अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे सैटर्न का है, इनकी डेंसिटी सबसे कम है, रेडियस सबसे ज़्यादा है। और अगर देखा जाए तो अर्थ का फिर रेडियस ज़्यादा है, फिर उसका वीनस का है, देखो मार्स का भी कम है, पर देखो मरकरी से ज़्यादा है, तो मार्स का भी कम है, पर ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3। उसका देखा जाए सैटेलाइट्स तो देखो मरकरी नहीं, अर्थ के पास 1 है, मार्स के पास 2 है, और सबसे ज़्यादा तो इन दोनों के पास है, इस 2 जुपिटर और सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा है। मून को देखा जाए, मून हमारे पता है सबको, ओनली नेचुरल सैटेलाइट है मून। उसके अलावा भी अगर रिसेंट में देखा जाए तो एक और छोटा सा मून दिख रहा है, तो अर्थ को उसकी दूसरी सैटेलाइट्स को कहा जाता है कि उसका सेकेंड सैटेलाइट है। अर्थ मून हमारे मतलब कि हमारे अर्थ का एक दूसरा छोटा सा भी दिख रहा है। यू कैन सर्च ऑन दैट न्यूज़, दैट इज़ नॉट मच मोर इम्पॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन। तो क्या हुआ था इन 1838 सर जॉर्ज डार्विन सजेस्टेड इनिशियली द अर्थ एंड द मून फॉर्म्ड अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। अब इनका कहना ये है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना, कि अर्थ और जो मून है वो सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी थे। बताते द होल मास become a dumbbell band shaped body।